everyone. आज फिर से मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ. Myself, Dr. Abhimanyu Kumar Jha, and I welcome you on behalf of Tutronics. And I would like to tell you a few things about Tutronics. If you want to crack JEE NEET 2021 or 2022, Tutronics brings to you the most comprehensive and exhaustive online classroom program for JEE NEET by IITians and India's best faculty members. Apply now for 3 free demo classes from the comfort of your home by IITians and India's best teachers. Our unmatched features include regular online live classes, regular doubt solving, free study materials, small batches with personalized attention, unlimited test series, daily practice problems, and recorded video lessons, and many more. So 1,000 plus students have already registered for our JEE and NEET 2022 online classroom programs. What are we waiting for? We are waiting for you. So please come forward and let's join this revolution called as Tutronics. Okay, so students, आप सब इसी संदेश के साथ मैं जो है आपको आज लेके चलना चाहूँगा एक नए जर्नी पे, और इस जर्नी को हम कहते हैं जर्नी ऑफ जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स जो कि हम बॉटनी में कर रहे हैं, हमने इसकी 2 क्लासेस की हुई हैं पहले, और अगर आपको ध्यान हो, वी हैव डन quite a bit of genetics in these first 2 classes, और आपको पता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा. And with this I would like to move forward in today's class, and I would like to take forward the things. And this is a really big thing that we are doing the things step by step in zoology as well as botany. And Tutronics आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही अनोखा सा ये पूरा botany और zoology का संगम. So we are going to do that, and I'm going to start with the next step. That is, we have already done, if you remember, we have done monohybrid cross, we have done Mendel's contribution, we have done the different contrasting characters studied by Mendel. Then we also did the laws given by Mendel, law of dominance, law of segregation, law of independent assortment and all. So I think law of independent assortment is still left, but we had done what you call as the exceptions to Mendel's first law. That was, that was the, first law of Mendel, obviously, but that was law of dominance, and it is not the fundamental law. So please remember that the first law given by Mendel is not considered as a fundamental law by many scientists. And why it is not a fundamental law? Because there are many exceptions which we studied in the last class. For example, incomplete dominance, codominance, as well as multiple allelism. In addition to that, we have also done back cross and test cross, and how it is used in genetics. So today we will proceed with the further topics. So let's see. अब शुरू करते हैं फटाफट. मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूं, और जल्दी से हम शुरू करते हैं पार्ट 3 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. So let's start with this. I hope the things are going to be clear, and I'm going to go for a slideshow. So let me take you to the slideshow. So this is the thing, if you can see here, and this is what we can move ahead with. So this is the inheritance of 2 genes. अब तक हमने जो पढ़ा है बच्चों, वो पढ़ा है हमने कि एक जीन का जब इनहेरिटेंस होता है तो वो कैसा होता है और कैसे चलता है, और उसको हमने उसकी जो क्रॉस थी उसको हमने कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ये जो क्रॉस है ये कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है. सो येलो कलर एंड राउंड शेप इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप. येलो कलर एंड राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप. और हमें ये पता है कि सीड कलर में, अगर आपको ध्यान हो, मेंडल के कैरेक्टर्स अगर आपको ध्यान हो, तो सीड कलर में येलो डोमिनेंट है, ठीक है, और ग्रीन रिसेसिव है. और सीड शेप में आप ध्यान से देखेंगे, सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है और रिंकल रिसेसिव है. तो राउंड को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रिंकल को स्मॉल आर से. उसी तरह यहाँ पे सीड कलर में येलो को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से, और ग्रीन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल वाई से. सो दिस इज डिनोटेड बाय, आई थिंक यू कैन राइट इट लाइक दिस. ये डिनोट जो हम इसको करेंगे वो हम करेंगे स्मॉल वाई से. ठीक है जी. तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, और जल्दी से हम देख रहे हैं इसको. यस, ये डिनोट हम करेंगे स्मॉल वाई से. तो इस केस में अगर दोनों जीन्स को एक साथ लिया जाए तो ऐसे क्रॉस को कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि दोनों जीन्स हैं. और दोनों जीन्स के केस में अगर मैं बताऊं आपको, तो दोनों ही जीन्स के केस में अगर हम ध्यान से देखें तो व्हाट वी कैन सी इज दैट इनमें हम 2 जीन्स में दोनों में 2-2 एलील्स होंगी,
So here you can see the parental combination will be like this, capital R R Y Y. अब आपको कि सर ये कैसे आया, तो आपको पता है कि capital R stands for what, round shape, और capital Y stands for seed color, dominant seed color यानी yellow seed color. तो ये round yellow है, capital R capital R capital Y यानी homozygous है, homozygous dominant. ठीक है जी, ये तो आपको क्लियर होगा, homozygous dominant. ठीक है, और इसको हम अगर क्रॉस कर दें होमोजाइगस रिसेसिव के साथ तो क्या आएगा, ध्यान से देखें, होमोजाइगस रिसेसिव. ठीक है, तो इसमें आता है आपका रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन. तो स्मॉल आर आर वाई वाई, इसकी अगर हम बात करें तो ये हम ध्यान में देखेंगे. तो अगर हम देखें इसकी बात, तो गैमेट्स कौन से आएंगे, कैपिटल आर वाई, और यहाँ क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो इसको अगर हम F1 जनरेशन में देखें तो ये कैसा आएगा, देखिए, it will come like capital R small r capital Y small y. Is that clear? So this is called as a round yellow. This is called as a round yellow. I hope it is clear. Clear है जी. So ये जो F1 जनरेशन है इसमें सारे के सारे राउंड येलो ही आएंगे. F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड येलो ही आएंगे. और इधर आप देख सकते हो कि जब F1 की सेल्फिंग की जाती है, ये कैसे आया, this comes after selfing. So this is what selfing. तो सेल्फिंग में आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो है हमें पता है कि सेल्फिंग में यहाँ पे दो गैमेट्स आते हैं. मैं आपको बता दूं, आप देखें ध्यान से, आई थिंक इट विल बी क्लियर. यहाँ जो है ये है मेल गैमेट और ये आपको पता है कि ये सारा है फीमेल गैमेट. तो चार तरह के गैमेट्स बनेंगे. कौन कौन से बनेंगे, देखो चार कॉम्बिनेशंस बनेंगे बेटा. you need to understand this, capital R capital Y small r capital Y. फिर उसके बाद अब कैपिटल Y वाले तो दोनों हो गए, अब एक क्या होगा, कैपिटल R वाला बचा हुआ है, कैपिटल R और स्मॉल y. ठीक, अब कैपिटल R वाले दोनों हो गए, कैपिटल Y वाले दोनों हो गए, लेकिन एक वो भी तो बचा है जिनमें दोनों स्मॉल होंगे, स्मॉल r स्मॉल y. इज दैट क्लियर? ये चार तरह के गैमेट्स बनेंगे इधर इसमें मेल में, और चार तरह के गैमेट्स बनेंगे किधर, फीमेल में. तो इस तरीके से पूरा बनेगा. और आप देख सकते हो फीमेल में भी वही गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल R Y then capital small r capital Y then capital R small y और small r small y. I hope you got it. तो इस केस में हम अगर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करें तो ये बनता है आपका राउंड येलो, ये बनता है आपका फिर से राउंड येलो, देन दिस इज राउंड येलो, और ये है राउंड येलो. तो आप देख सकते हो कि राउंड येलो अगर हम देखें तो देखो दोनों में से कोई एक एलील भी अगर डोमिनेंट है, ध्यान से समझना, मतलब दो एलील हैं, एक ट्रेट की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ट्रेट. सपोज हम सीड कलर की बात करें तो सीड कलर में अगर कैपिटल R दोनों हैं तो भी राउंड होगा, और कैपिटल R अगर एक है तो भी राउंड होगा. उसी तरह अगर ये दोनों Y हैं तो भी येलो होगा, कैपिटल Y अगर दोनों हैं, डोमिनेंट है दोनों एलील, और अगर ये एक है तो भी ये येलो होगा. तो राउंड येलो के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इसमें एक हेटेरोजाइगस हो लेकिन इसमें दोनों होमोजाइगस. तो इन चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, चाहे इस तरह का ले लो. तो कैसा आएगा, देखो कैपिटल R कैपिटल Y आएगा, इसको क्या कहेंगे, राउंड येलो. यहाँ इस तरह का आएगा, क्लियर है, फिर इस तरह का आएगा. तो इस तरीके से करते करते आप देखोगे कि ये सारे जिनको मैं अभी टिक मार्क कर रहा हूँ, ये सारे के सारे, आई थिंक यू कैन ट्राई एट होम एज वेल. ये नहीं आएगा इसमें, ये नहीं आएगा, इसको क्रॉस हम कर सकते हैं, ये क्रॉस करेंगे और ये क्रॉस करेंगे, अलग होगा. और ये तो आप देख सकते हो, ये तो 1 2 3 4 then 5 6 7 8 and 9. तो 9 आपके आएंगे राउंड येलो. ठीक है जी, 9 आएंगे राउंड येलो. तो ये जो रेशियो होता है, इस रेशियो को हम कहते हैं मेंडेलियन डाई हाइब्रिड रेशियो. मेंडेलियन डाई हाइब्रिड रेशियो. ये कितना आता है अगर हम ध्यान से देखें, ये आता है 9:3:3:1. Is that clear? 9:3:3:1. Is that clear? समझ में आया? कोई डाउट? सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो ये जो 9 है, ये 9 क्या है, ये 9 है राउंड येलो, और ये जो 3 है, ये 3 क्या है, 3 क्या है, जल्दी बताएंगे फटाफट. What is this 3? ये 3 है, अभी आ जाएगा, अभी बताते हैं. देखो ये 9 तो हो गया राउंड येलो, और ये जो स्मॉल r r y y देखा था तुमने, ये क्या था, रिंकल ग्रीन था. तो यही जो है यहाँ पे भी आ रहा है, दिस इज रिंकल ग्रीन, स्मॉल r r y y.
तो ये 9 तो हो गया, ये राउंड येलो, 1 क्या हो गया, रिंकल ग्रीन। तो बचा क्या, 3:3, यही बचा। इस 3:3 में क्या क्या है देखो ध्यान से, तो मैं अलग उसमें दिखाऊंगा आपको। देखो एक तो है राउंड येलो हो गया, और ये क्या है, राउंड ग्रीन। तो क्रॉस वालों को एक साथ ले लो, राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब स्टार वालों को एक साथ ले लेना। स्टार वाले में भी 3 आएंगे, कैसे, देखो ये सारे। अब जैसे ये है स्मॉल आर आर कैपिटल वाई वाई, उसको क्या बोलोगे भाई, स्मॉल आर आर है तो क्या होगा, रिंकल भी तो होगा, लेकिन यहाँ क्या है, येलो हो गया। उसी तरह स्मॉल आर ये, इसको क्या बोलोगे, ये भी रिंकल येलो हो गया। और तीसरा क्या है, स्मॉल आर, लेकिन इसी तरह का बिल्कुल डिटो जैसा दूसरा वाला, ये भी क्या हो गया, रिंकल येलो। तो तुम्हारे 9:3:3:1 में 3 है रिंकल येलो। अब इसका मतलब समझना, रिंकल येलो, और 3 तुम्हारे क्या है, राउंड और येलो। ध्यान से समझना, राउंड और येलो, ठीक है। तो राउंड येलो तो पहले भी थे, तो आपको किसका राउंड येलो तो पहले भी थे, तो वो जो 3 है वो राउंड येलो वाले तो मिक्स हो जाएंगे किसमें, इसमें। तो राउंड येलो वाले तुमने पहले ही जोड़ लिए, तो उसको जोड़ने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमें जो लेना है वो कौन सा आएंगे, देखो राउंड और, अभी लिख देता हूँ, इसको हम मार्क कर देते हैं आपके लिए ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर रहे। इसको हम मार्क कर देते हैं स्टार मार्क्स। देखो एक, ठीक है, फिर दूसरा देखो, ठीक है, और अब देखो ये सारे कौन से हैं, रिंकल येलो तो हो ही गया। उसके बाद हमने क्या करा, राउंड येलो हो गया ये वाला। उसके बाद कौन सा है, राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन कौन सा होगा, ये स्टार वाला कौन सा है, रिंकल येलो वाला। स्टार वाला कौन सा है, रिंकल येलो वाला। तो वो तो हमने कर ही दिया। कितने आए, ये 3 आए। कितने आगे बेटा, दिस इज 3। और ये भी तो है राउंड ग्रीन, क्रॉस वाला जो हमने पहले से मार्क करके रखा है। तो क्रॉस वाले को जोड़ो, क्रॉस वाले कितने हैं, राउंड और ग्रीन। कितने आएंगे देखो ध्यान से, दिस विल आल्सो कम आउट टू 3। तो ये जो 3 यहाँ और 3 यहाँ बने, ये आपके पेरेंटल टाइप्स में नहीं थे। आपके पेरेंटल टाइप्स में 2 ही तरह के थे, एक था राउंड येलो और एक था रिंकल ग्रीन। समझ में आया। तो जो पेरेंटल टाइप्स में नहीं थे वो ये थे, इनको हम कहते हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट्स। उनको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। इज दैट क्लियर। रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हुए, रिकॉम्बिनेंट्स आर द न्यू कॉम्बिनेशंस। रिकॉम्बिनेंट्स मतलब दोज हु आर फॉर्म्ड बाय न्यू कॉम्बिनेशंस, है ना। तो न्यू कॉम्बिनेशन से जो बने उनको हमने कह दिया रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, मेंडेलियन डायहाइब्रिड रेशियो कितना है बेटा, दैट इज 9:3:3:1। आई होप यू गॉट इट, एनी डाउट, ठीक है जी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें 9 और 1 यानी 9+1 जो है वो क्या है आपका पेरेंटल टाइप से, यानी एक तो है आपका राउंड येलो और एक है आपका रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन जो 3+3 है उसमें 3 क्या है, रिंकल्ड ग्रीन है, और 3 क्या है, राउंड ग्रीन है। ये आपके रिकॉम्बिनेंट्स। आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे देखो राउंड जो था पेरेंटल टाइप्स में, देखो ध्यान से, पेरेंटल टाइप्स में राउंड येलो के साथ था और रिंकल किसके साथ था, ग्रीन के साथ। लेकिन अगर हम F2 जनरेशन में बात करें, F1 में तो सारे राउंड येलो ही रहे, लेकिन F2 जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो F2 जनरेशन में आप देख सकते हो कि राउंड जो है वो ग्रीन के साथ भी चला गया। यहाँ देखो राउंड जो है वो ग्रीन के साथ भी चला गया। व्हाट डज इट शो, व्हाट डज इट शो, आप बताओ जल्दी से फटाफट। तो आप बताएंगे फटाफट। और रिंकल्ड जो है वो भी येलो के साथ चला गया। तो क्या रिंकल्ड येलो के साथ था, नहीं था, यहाँ तो रिंकल ग्रीन के साथ था। पेरेंटल टाइप में रिंकल वाज विद ग्रीन, लेकिन यहाँ रिंकल येलो के साथ चला गया तो कितने हो गए, 3। और राउंड जो है वो भी ग्रीन के साथ चला गया तो कितने हो गए, 3। तो 3 और 3 यानी ये जो है ये पोर्शन जो आपका है वो क्या है आपका रिकॉम्बिनेंट्स। समझ में आया। यानी कि दो जो आपके जीन्स हैं, यानी 2 पेयर्स ऑफ एलील्स, 2 जीन्स का मतलब क्या हुआ, 2 पेयर्स ऑफ एलील्स, तो दे आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब राउंड जरूरी नहीं कि येलो के साथ ही जाए खाली, और रिंकल जरूरी नहीं कि सिर्फ ग्रीन के साथ ही जाए। आप देखेंगे पेरेंटल टाइप में राउंड येलो भी था, रिंकल ग्रीन भी था, लेकिन F2 जनरेशन में नए कॉम्बिनेशंस बन गए। राउंड येलो तो आया ही, राउंड येलो तो आया ही 9, और रिंकल ग्रीन भी आया, लेकिन उसके अलावा रिंकल्ड येलो के साथ भी चला गया और राउंड भी ग्रीन के साथ भी चला गया। यानी कि ये दोनों पेयर ऑफ एलील्स दे आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यानी ये दोनों पेयर ऑफ एलील्स आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बता दो। आई होप यू गॉट इट। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी जरूर होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इजी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इज दैट क्लियर। चलें आगे, चलो जी। तो ये रेशियो आप ध्यान में रखेंगे, 9:3:3:1। दिस इज द मेंडेलियन डायहाइब्रिड रेशियो, एंड दिस इज द रेशियो व्हिच इज ऑब्टेन्ड व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स आर कंसीडर्ड टुगेदर।
चलिए आगे चलते हैं बच्चा। तो मैं आपको बता दूं ये जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो आया वो कितना आया। फिनोटाइप और जीनोटाइप ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। फिनोटाइप होता है जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो यहाँ पे 9 क्या है देखो जरा, राउंड येलो है ना 9, ठीक है जी। 1 क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। ये दोनों पेरेंटल टाइप्स में भी प्रेजेंट थी। तो पेरेंटल टाइप्स में कितनी प्रेजेंट हुई, 10, क्योंकि टोटल कितनी है देखो 9 + 3 + 3 + 1 कितना हो गया 16। तो 10 आउट ऑफ 16 ये आपका पेरेंटल टाइप्स में प्रेजेंट था। और राउंड के साथ एक और क्या आ सकता है, ग्रीन, तो वो कितना है बेटा, वो आया 3। और इधर रिंकल के साथ कितना आ सकता है, वो आ सकता है येलो, तो वो भी आया 3। तो ये जो 6 हैं ये नए हैं। तो पेरेंटल टाइप्स आपके कितने आए, 10 आउट ऑफ 16, और रिकॉम्बिनेंट्स कितने आए, 6 आउट ऑफ 16। आई होप यू गॉट इट, कोई डाउट, सिंपल है। चलिए, तो अब आते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। ये मेंडल का तीसरा लॉ था। पहला लॉ आपने देखा, पहला लॉ क्या है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें आपने क्या देखा कि डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इवन इन द presence of the recessive trait, whereas recessive trait fails to express itself even in the presence of the dominant trait. यानी recessive trait expresses itself only in the absence of the dominant trait. दूसरा आपने देखा कि भाई आपका जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसके हिसाब से लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं हम इसको। मतलब ईच गैमेट इज प्योर फॉर इट्स ट्रेट, मतलब हर गैमेट में अपने ट्रेट का वही ट्रेट आएगा जो उस गैमेट के पेरेंट में रहा। अगर कैपिटल टी पेरेंट में नहीं था तो वो गैमेट्स में भी नहीं आएगा। अगर स्मॉल टी नहीं था, यानी कि अगर ड्रॉपनेस वाली एलील नहीं थी, तो वो ड्रॉपनेस वाली एलील नहीं आएगी। समझ में आया। पेरेंट जो भी गैमेट बनाएंगे उनमें, उनके गैमेट में वही एलील आएंगे जो पेरेंट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। समझ में आया। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी ईच ट्रेट और ईच गैमेट इज प्योर फॉर इट्स ट्रेट, ईच गैमेट इज प्योर फॉर इट्स ट्रेट। आई होप यू गॉट इट। एनी डाउट, क्लियर है। So when two pairs of traits are combined in a hybrid, one pair of characters segregates independently of the other pair of characters. I hope it is clear, without. So in a dihybrid cross between two plants having round yellow and wrinkled green seeds, RRYY, 4 types of gametes. ये 4 तरह के gametes है, capital RY, then capital R small y, small r capital Y और small r small y. They are produced. So each of these segregate independent of each other, each having a frequency of 25% of the total gametes produced. Is that clear? 25% of the total gametes produced. Any doubt? कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते। चलें जी आगे चलें, फटाफट आगे चला जाए। समझ में आ गया? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अब हम बात करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉज की। अब हम देखते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। ध्यान से देखें। मेंडल्स वर्क रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर सेवरल इयर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्या रीजंस थे कि मेंडल के वर्क को काफी सालों तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका। पहला तो था कि उस समय कम्युनिकेशन इतनी प्रॉपर नहीं थी लोगों में, और कम्युनिकेशन लोगों में मतलब भाषा तो थी, लेकिन इस तरह से इतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं था। आज की तरह इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, है ना। इवन लैंडलाइन भी उस तरीके से हर जगह पे नहीं था। पब्लिसिटी भी प्रॉपर नहीं थी। एंड मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स, जिनको बाद में कहा गया जीन्स, मेंडल ने उनको टर्म दिया था फैक्टर्स, दे आर डिस्क्रीट यूनिट्स that did not blend with each other, was not accepted in the light of variations जो कि लगातार नेचर में आकर करते रहते हैं। I hope you got it. तीसरा था मेंडल का जो अप्रोच था टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेना विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, उसको लोगों ने बिल्कुल ही अपोज किया। लोगों ने कहा मैथ्स की क्या जरूरत है बायोलॉजी में, और बायोलॉजी में मैथ्स घुसा के आप करना क्या चाहते हैं। लेकिन इन 1990, ध्यान से समझना, 1990 नहीं होगा, ये 1900 है, ध्यान से देखना, ये कुछ ज्यादा ही टाइप एरर हो गया। इन 1900 3 साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, कौन कौन से थे? एक तो था ह्यूगो ड्यूब्राइस, एक था कार्ल कॉरेंस, है ना, और तीसरा था वॉन शर्मैक। आपको शर्मैक कैसे सर? टी साइलेंट है, शर्मैक। दे इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। इन तीनों ने अलग अलग कंट्रीज के थे तीनों, और तीनों ने अपनी अपनी कंट्री में बिना एक दूसरे से कोई वार्तालाप हुए या डिस्कशन हुए या कम्युनिकेशन हुए, क्योंकि उस समय इंटरनेट भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था कि हेलो हाउ आर यू कर सके, है ना। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कंट्री में लगातार अपने अपने वर्क से प्रूव किया कि यस, मेंडल का जो वर्क था वो अपने आप में बहुत अमेजिंग वर्क था, और उन्होंने, इन तीनों ने मिलकर मेंडल के लॉज को रीडिस्कवर किया।
तो ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये तो फंडामेंटल लॉ है। आपको वैसा क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है? बिल्कुल है जी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी एक फंडामेंटल लॉ है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो एक फंडामेंटल लॉ नहीं है। चलें जी आगे, डन। चलिए, ना वहाँ पे क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि धीरे धीरे क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर का भी पता चलने लगा, क्योंकि थोड़ी सी एडवांसमेंट हो रही थी किसमें, आपके बायोलॉजिकल साइंसेज में। सो बाय 1900 टू 1901 कहते हैं इसको वैसे, 1900 to 1901, there were two scientists, Sutton and Boveri, who discovered that the behavior of chromosomes was similar to the behavior of genes. तो इन्होंने कहा कि जीन्स और क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर होता है उसमें काफी सिमिलैरिटी होती है। And chromosomes and genes, ध्यान से देखें कि chromosomes and genes both occur in pairs. So two alleles of a gene pair are located on homologous sites of homologous chromosomes. They are located on homologous sites of homologous chromosomes. Is that clear? Any doubt? Clear है जी? Okay. So Sutton and Boveri की अगर हम बात करें, they further proposed that it is the pairing and separation of a pair of chromosomes, pairing and separation of a pair of chromosomes that ultimately leads to segregation of the pair of factors they carry. तो अल्टीमेटली ये जो पेयरिंग होता है और सेपरेशन होता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का, उसी से सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स होता है जो फिर वो कैरी करते हैं। सो यूनियन ऑफ नॉलेज, फाइनली क्या किया गया, द यूनियन ऑफ दिस नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल एग्रीगेशन और क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, वी शुड से the union of knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles constitutes what is called as the chromosomal theory of inheritance. अब देखेंगे कि ये chromosomal theory of inheritance कहती क्या है और क्या इसमें अलग है। चलिए देखते हैं। चलिए जी, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है जी? क्लियर है? चलिए, अब इसके हिसाब से chromosomal theory of inheritance के हिसाब से एक चीज जो बहुत उभर के आई वो ये कि भाई इन्होंने कहा, सटन बोवरी ने, कि भाई जीन्स का जो बिहेवियर होता है उसी तरह क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है। इन्होंने कहा कि जीन्स जैसे पेयर में होते हैं क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं। ठीक है जी, मान लिया। इन्होंने कहा जीन्स जैसे गैमेटोजेनेसिस में सेग्रीगेट करते हैं वैसे ही क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट करते हैं। तीसरा इन्होंने कहा कि भाई जीन्स जैसे मियोसिस के दौरान, गैमेटोजेनेसिस के दौरान रहेंगे वैसे ही आपके क्रोमोसोम्स भी रहते हैं। तो इसके बेसिस पे एक थ्योरी प्रपोज की सटन बोवरी ने। उन्होंने कहा कि इसका मतलब, कंक्लूजन क्या निकालते आप अगर होते सटन बोवरी की जगह, तो व्हाट कंक्लूजन वुड यू हैव ड्रॉन? बताओ। अगर आप सटन एंड बोवरी की जगह होते तो आप क्या कंक्लूजन निकालते इन जनरलाइजेशन से जो आपके पास आई? ये जनरलाइजेशन जितनी भी हैं उनसे ये आई है कि जब जीन्स भी पेयर्स में है, क्रोमोसोम्स भी पेयर में, दोनों ही सेग्रीगेट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ व्हाट यू कॉल एज डिवीजन, सेल डिवीजन, यानी मियोसिस, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे दोनों सेग्रीगेट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों दिल के खराब तो नहीं है। तो दिल के खराब नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? दिल के खराब नहीं है मतलब क्या हुआ जी? दिल के खराब नहीं है मतलब दोनों ही एक जैसे। एक जैसे है का मतलब क्या हुआ? एक जैसे है का मतलब हुआ कि दोनों पेयर्स में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब मियोसिस में सेग्रीगेट भी करते हैं, इसका मतलब, और गैमेटोजेनेसिस में फॉर्म भी होते हैं, इसका मतलब ये है कि बोथ हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, यानी जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। ये इसका मतलब, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड हैं। और आप देख सकते हो कि ये आपका है कैपिटल ए, ये है कैपिटल बी, ये कैपिटल सी, ये कैपिटल डी, और ये आप देख सकते हो स्मॉल ई हो गया, मान लो कैपिटल एफ हो गया, स्मॉल जी हो गया, एच हो गया, और कैपिटल आई की जगह स्मॉल एल ले लो। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो कैपिटल ए होगा या स्मॉल बी होगा, या कोई भी हो, मान लो स्मॉल सी है और डी की जगह भी स्मॉल बी है, फिर यहाँ पे ई, फिर कैपिटल एफ, फिर यहाँ एफ था ना, ये एस है स्मॉल वाला, यहाँ क्या हो गया, ई हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, जी एच आई, तो ये चीज है। तो इसमें ये जो तुम्हारे जीन्स जहाँ पे लोकेटेड हैं, इन जीन्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? लोकस। दिस इज कॉल्ड एज लोकस। तो ये जो लोकस है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द जीन।
दिस इज द पोजीशन ऑफ द जीन्स। तो आप ये जानते हो कि ये तो पोजीशन हो गई जीन्स की, लेकिन ये जो जीन्स की पोजीशन है, तो इस पोजीशन के प्लूरल को हम क्या कहेंगे? देखो सिंगुलर को हमने कहा लोकस, तो प्लूरल को क्या कहेंगे? लोकाई। प्लूरल इज कॉल्ड एज लोकाई। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? सिंपल है। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद एक नई कहानी शुरू हुई। नई कहानी क्या थी? ये तो चलो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पता चला, लेकिन डायहैबिट क्रॉस जो है ड्रोसोफिला में जब किया गया तो उससे नई चीजें सामने आई। मैं आपको बता दूं पहले, जस्ट वन मोमेंट। यहाँ पे जो डायहैबिट क्रॉस किए गए उससे कई नई चीजें सामने आई। देखो, ये डायहैबिट क्रॉस किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने, और थॉमस हंट मॉर्गन को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। जेनेटिक्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें थॉमस हंट मॉर्गन के इन एक्सपेरिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। So Thomas Hunt Morgan discovered the basis of variations that sexual reproduction produced. उसने कहा कि किस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के केस में वेरिएशंस आती हैं, ठीक है? तो फिर हुआ क्या? He worked on fruit flies. तो वो fruit flies का नाम क्या है? Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster. He chose Drosophila because of the following reasons. तो इसने किन रीजंस की वजह से ड्रोसोफिला को चुना? देखो ध्यान से, ड्रोसोफिला वो फ्लाई होती है जब आप फ्रूट्स खाते हो ना, तो फ्रूट्स के जब आप खा रहे होते हो तो उस समय जो आ जाती है फ्रूट्स के ऊपर, है ना, तो वो क्या है? फ्रूट फ्लाइज है ना। जब आप कभी आप मैंगो खाते हो या कोई भी आप फ्रूट खाते हो, तो वो सारा हमें ध्यान में रखना है। तो वो अगर आप देखते हो तो दे वर सुटेबल फॉर टू ग्रो ऑन सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी। तो उसने ड्रोसोफिला को क्यों लिया? क्योंकि सबसे पहला तो वो सुटेबल था टू ग्रो ऑन सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी। दूसरा था कि इसका लाइफ साइकिल ड्रोसोफिला का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट के लिए ह्यूमन बीइंग को लेते हो तो एक रिस्क है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग सपोज आपको इफेक्ट देखना चाहते हो और आप 20 साल की एज में देखना चाहते हो, तो आज आपने इस जनरेशन में की और आप उसको अगले जनरेशन में अगर ले जाना चाहते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगले जनरेशन में बंदा अगर हो सकता है कहीं शादी से इनकार ना कर दे, कहीं कोई रीजन ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। दूसरा, अगर 20 साल की एज में आपको इफेक्ट देखना चाहते हो तो आपको 20 साल जिंदा भी तो रहना पड़ेगा। साइंटिस्ट जब ये एक्सपेरिमेंट इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लेवल तक पहुंचते हैं तो ऑलरेडी उनकी एज काफी हो चुकी होती है। उसके बाद उस लेवल तक पहुंचना, और ऐसा भी नहीं है कि जो साइंटिस्ट काम कर रहा है उसका बेटा जो है या उसका कोई नोन जो है वो वही फील्ड ले लेगा और वो उसको वहीं से उठाएगा, उस नॉलेज को नहीं उठा पाएगा। So that's why you need to choose those species which are having very less generation time. So their life cycle is complete in 2 weeks, and single mating produces many progeny flies. Single mating produces many progeny flies. So clear differentiation of sexes is there. Easily distinguishable male and female are there. So hereditary variations की अगर मैं बात करूँ, they are clearly visible with low power microscope. So low power microscope के साथ अगर हम देखें तो ये आपके जो hereditary variations हैं ये clearly visible होते हैं. So this is what you have to keep in mind. चलिए जी आगे चलें। तो इसमें मेल और फीमेल इजीली डिस्टिंग्विशेबल था, सिंगल मेटिंग से कई सारे प्रोजेनी मिल रहे थे, लाइफ साइकिल 2 वीक में ही कंप्लीट हो रही थी, और दे वर सुटेबल टू ग्रो ऑन सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? चलिए जी आगे। चलो जी बहुत बढ़िया। तो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट क्या थे और कैसे उसने किया ये भी जरा देख लें हम ध्यान से। तो ध्यान से देखो, मॉर्गन के जो एक्सपेरिमेंट थे इसने लगाए डायहैबिट क्रॉस, और डायहैबिट क्रॉस इसने किस पे लगाया? फ्रूट फ्लाइज में, यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। तो येलो बॉडीड लिए और व्हाइट आइड मेल लिया। ध्यान से समझो, येलो बॉडीड जो मेल है, ठीक है, और साथ में एक ये भी इसने करा। देखो मैं ध्यान से पहले बता दूं, पहले जो करा गया उसमें कॉम्बिनेशन अलग अलग लिए गए। एक कॉम्बिनेशन में तो इसने ये भी रखा कि येलो बॉडीड और व्हाइट आइड फीमेल एक तरफ रख दी और उसको क्रॉस कर दिया ब्राउन बॉडीड और रेड आइड फीमेल से। तो येलो बॉडीड और व्हाइट आइड फीमेल है, ठीक है, ये रखा मेल में, और दूसरी तरफ ब्राउन बॉडी, ठीक है। तो ये अगर तुम कैपिटल वाई मानोगी और इसको अगर तुम मान लो सपोज कैपिटल डब्ल्यू मानोगी, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? स्मॉल वाई और रेड आइड फीमेल। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसको जब आप रेड आइड को आप वो भी कर सकते हो, इसको डब्ल्यू और कैपिटल आर दिखा रहे हो, तो आप इसको ये भी कर सकते हो कि कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू दिखा। या तो देखो,
येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल को किससे क्रॉस किया गया, ब्राउन बॉडी यानी स्मॉल वाई और रेड आइड मेल को सपोज ऐसे रख लो। तो F1 प्रोजेनी ऑब्टेन हुई, नेचुरली ऑब्टेन होगी F1 प्रोजेनी यानी फर्स्ट फिलर जनरेशन। उसके बाद F2 प्रोजेनी भी ऑब्टेन हुई, तो F2 रेशियो को ऑब्जर्व किया गया। अब ये जो F2 रेशियो ऑब्जर्व किया गया, यहाँ झटका लगा लोगों को, मॉर्गन की टीम को यहाँ झटका लगा क्या कि F2 रेशियो वाज ऑब्जर्व टू बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 9:3:3:1 आना चाहिए, जो कि मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस में आना चाहिए, लेकिन आया क्या, देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया कि क्यों ये डिवीजन आया मेंडेलियन रेशियो से। सबसे पहले डेफिनेशन ये दिया गया कि जो जीन्स हैं आपके, वो जीन्स लोकेटेड है कहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, जीन्स इन्वॉल्व्ड आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, यानी जीन्स जो लोकेटेड है वो कहाँ है, एक्स क्रोमोसोम पे है। दूसरा, व्हेन टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब भी दो जीन्स जो है लोकेटेड है सेम क्रोमोसोम पे, तो प्रोपोर्शंस ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस वर मच हायर देन दोज ऑफ नॉन पेरेंटल। तो ध्यान से देखो, जब दो जीन्स लोकेटेड है सेम क्रोमोसोम पे, तो प्रोपोर्शंस ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन दोज ऑफ नॉन पेरेंटल। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखना। एक और नई फेनोमेना डिस्कवर हुई यहाँ पे, और वो नई फेनोमेना क्या थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हुआ, दो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे हो और काफी पास पास लोकेटेड हो, उसको फेनोमेना को हम कहेंगे लिंकेज। ध्यान से देखो, एंड उन जीन्स को हम कहेंगे लिंक्ड जीन्स। ये आपको याद होगा, मैंने कराया भी हुआ है पीछे की क्लासेस में और शॉर्ट में बताया हुआ है। और लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंकेज लिख लो, इट इज द फेनोमेना ऑफ inheritance of two genes together. यानी कि आपके दो जीन्स इकट्ठे ही इनहेरिट होंगी, इस तरह का जो फेनोमेना है इसको हम कहते हैं लिंकेज। समझ में आ गया क्या कहते हैं, लिंकेज। लेकिन अगर हम बात करें दो जीन्स की जो काफी क्लोज क्लोज लोकेटेड हैं, तो उन जीन्स को हम कहेंगे क्या, उन जीन्स को हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स। क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन्स। लिख लो, जस्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, लिंक्ड जीन्स। तो दो जीन्स जो इकट्ठे ट्रांसफर होती हैं उनको हम कहते हैं linked genes. The genes involved are located on X chromosome. When two genes are located on the same chromosome, the proportions of parental gene combinations were much higher than those of non-parental. Linkage को कहते क्या है हम, मैंने आपको पहले बताया, physical association of genes on a chromosome। और recombination क्या होता है, recombination है non-parental gene combination। क्या है, non-parental gene combination। I hope you got it. Any doubt? कोई doubt? Clear है जी? तो अब देखो ध्यान से, लो रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है और हाई रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है। क्यों होगा, कैसे होगा, देखो। लो रिकॉम्बिनेशन तब होगा व्हेन जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम्स आर टाइटली लिंक्ड, यानी सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं उनमें जो लिंकेज है वो कंप्लीट लिंकेज होगा। तो सर ये होता क्या, तो टाइटली लिंक्ड है तो उसमें क्या होगा, जीन्स व्हाइट एंड येलो आर टाइटली लिंक्ड एंड दे शो ओनली 1.3 रिकॉम्बिनेशन। ठीक, जबकि हाई रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जब दो जीन्स लोकेटेड है, सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो ध्यान से देखो, सपोज ये ए बी सी डी, देखो ये दो जीन्स जो हैं, सपोज ये ए है, ये बी, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं सी डी ई एफ आई। तो अगर ध्यान से देखें तो आपको पता है यहाँ भी हम लिख सकते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी, या यहाँ पे कैपिटल सी, यहाँ पे हो सकता है दोनों डी हो, या यहाँ पे ई एक एफ, यहाँ एफ और यहाँ। तो ध्यान से देखो, ये जो सेम जो जीन्स है या क्लोज जो जीन्स है उनकी पहले हम बात करें, तो जो जीन्स क्लोज है, जैसे सपोज हम बात करें यहाँ पे, ध्यान से देखो, अब ये ए और बी के बीच अगर हम बात करें तो ये लिंक्ड जीन्स भी हैं एंड दे आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, दे आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब कि ये एक ही क्रोमोसोम पे तो हैं लेकिन साथ में है भी बहुत पास पास। ध्यान से देखो, सो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ऐसे जीन्स को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट लिंकेज, दे आर शोइंग कंप्लीट लिंकेज।
ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसे सिचुएशन में नहीं रह रहा तो उसको तो चाहे जैसा भी हो उसको करना ही पड़ेगा। तो कंप्लीट लिंकेज के केस में ये मान के चलो कि जब ए और बी जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर भी जब होगी ना तो क्या होगा, ए और बी जनरली इकट्ठे जाएंगे क्योंकि इनमें लिंकेज जो है एक दूसरे के बहुत पास है और लिंकेज भी तगड़ा है। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लो सपोज आपका कोई फ्रेंड है और आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो आप उसी के साथ स्कूल जाओगे, अगर वो आपके घर के आसपास भी रहता है तो आप उसी के साथ स्कूल भी जाओगे, आप उसी के साथ खेलोगे भी, लंच करने भी जाओगे, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू विल डू विद हिम और हर। लेकिन अगर वो रहता आप ही के स्कूल में है, ठीक है, लेकिन अगर वो कहीं दूसरी जगह पे रहता है, बहुत दूर रहता है कहीं से, तो क्या आप उसके साथ स्कूल जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। जा पाओगे क्या? नहीं जा पाओगे। उसी तरह क्या वो अगर मान लो सपोज केमिस्ट्री की ट्यूशन लेता है तो आपको भी केमिस्ट्री की ट्यूशन लेनी है, बायो की ट्यूशन लेता है तो बायो की ट्यूशन लेनी है, तो क्या सेम जगह पे जाओगे इसकी गारंटी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर प्रेजेंट और स्टडिंग इन द सेम स्कूल बट देयर इज सम डिफरेंस ऑल्सो। बट ये जो लिंक्ड जीन्स हैं ये एक साथ ही जाएंगे, एक के साथ एक फ्री। यानी कि अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और आप स्कूल में बैठते हो तो आप चाहते हो कि आप उसी के साथ बैठो और वो आपके साथ बैठे, लेकिन अगर कोई तीसरा आ जाता है और उस दिन आपका दोस्त जो है, जो बेस्ट फ्रेंड है आपका, वो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो अगर आप दोनों की लिंकेज बहुत तगड़ी है तो आप उसको कहोगे नहीं यार वो बैठा है, आने वाला है बस, आप उसको नहीं बैठने दोगे या फिर कोई बहाना लगा दोगे या बैग रख दोगे, कहोगे वो आया हुआ है। होगा कि नहीं? लेकिन अगर ऐसा नहीं है और अगर लिंकेज उतना तगड़ा नहीं है, मतलब यू आर लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है जी, आप एडमिशन के लिए प्रॉस्पेक्टस वगैरह भी ले आए, ब्रोशर ले आए या आई भी ले आए फिल करके और सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद अगर दूर दूर हैं तो क्या इकट्ठे आप डिसीजन ले सकते हैं? क्या इकट्ठे आप बस में जा सकते हैं? क्या इकट्ठे आप कोई भी काम इकट्ठे कर सकते हैं? नो। व्हाई? बिकॉज लिंकेज अगर क्लोज है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। कम होने का मतलब क्या है कि देखो, जीन्स व्हाइट एंड येलो, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, जस्ट वन सेकंड, या देखो, जीन्स व्हाइट एंड येलो आर टाइटली लिंक्ड एंड दे शो ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, जबकि जीन्स व्हाइट एंड मिनिएचर आर लूजली लिंक्ड, और अगर लूजली लिंक्ड हैं तो पक्का है कि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, यानी 37.2% होगा। यानी पेरेंटल टाइप्स जो है वो उतना ज्यादा नहीं होगा, होगा रिकॉम्बिनेशन से, अगर हम देखें रिकॉम्बिनेंट से तो रिकॉम्बिनेंट से तो ज्यादा होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि आप इस केस में देख रहे हो, जहां सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन है और 98.7% पेरेंटल कॉम्बिनेशन। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, यानी कि मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है तो अगर वो वहां बैठना चाहता है तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल आगे, कोई और बैठना चाहता है तो आप उसको रोकोगे, लेकिन रिकॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा ना उसमें। जब आप अगले को बैठने नहीं दे रहे हो अपने साथ और दूसरा भी जो है आपके दोस्त के साथ भी कोई नहीं बैठेगा, तो क्या होगा? सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन रहेगा, पेरेंटल टाइप ज्यादा रहेगा, जो पहले से एग्जिस्टिंग है। पेरेंटल टाइप मतलब क्या? जो पहले से एग्जिस्टिंग है वो ज्यादा रहेगी, यानी कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। यानी रिकॉम्बिनेशन अगर होगा भी तो बहुत ही कम होगा। जैसे कि आपको पहले एग्जाम्पल में दिख रहा है, देखो ये है बेटा येलो पेरेंटल जनरेशन में, ये है व्हाइट और ये है वाइल्ड टाइप। क्रॉस किया तो देखो यहाँ वाइल्ड टाइप आया, यहाँ येलो व्हाइट आया, लेकिन देखो पेरेंटल टाइप यहाँ कितना है 98.7 और यहाँ कितना रिकॉम्बिनेंट टाइप से 1.3। ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे में अगर तुम क्रॉस लगाते हो, ध्यान से देखना इसको, इफ यू गो फॉर अ क्रॉस हियर तो यहाँ आप देख सकते हो ये वाइल्ड टाइप है, ये व्हाइट है, ये येलो व्हाइट है और ये येलो है। तो आपका ये क्रॉस जो है उसका रेशियो 9:3:3:1 जो है वो नहीं आएगा। आई होप यू गॉट इट। उसी तरह हम दूसरा क्रॉस देखते हैं, जहां पे सपोज हम बात करें ए और बी अगर हम कहें तो वो कंप्लीट लिंकेज शो कर रहे हैं या दे आर टाइटली लिंक्ड, लेकिन ए और आई अगर हम करें, ए और आई अगर करें तो है तो सेमी क्रोमोसोम पे, है तो सेमी क्रोमोसोम पे, लेकिन फिर भी क्या इनके बीच इतना ज्यादा सिमिलरिटी होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये वाला बच्चा हो सकता है, आई वाला जो है कि हो सकता है कहीं दूर से आता हो, आपके घर से कम 60 किलोमीटर दूर से डेली आता हो। कई बार ऐसा भी तो होता है कि डेली जो बच्चा आ रहा है वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। ऐसे केस में क्या हम कह सकते हैं लिंक्ड है क्योंकि सेम क्रोमोसोम पे। लिंकेज की डेफिनेशन क्या है? genes which are inherited together are called as linked genes, and the phenomena in which, yeah, the phenomena of occurrence of genes of the same character or similar character together is called as linkage. Is that clear? Any doubt? तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे सपोज व्हाइट मिनिएचर है तो व्हाइट भी है और आप देख सकते हो कि मिनिएचर है, यानी कि विंग्स उतनी डेवलप वगैरह नहीं हुई। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो वाइल्ड टाइप है, उसमें क्या है W+M+। अब देखो क्या होगा, ये पेरेंटल टाइप है 62.8% और रिकॉम्बिनेंस कितना है 37.2%। तो अब देखो कितना आएगा। अब धीरे धीरे करके आप इसमें देख सकते हो कि ये आपका वेल मिनिएचर है
ठीक है, जिसको हम वाइट कहते हैं, ठीक है, वाइट मिनिएचर। और ये भी आपका वाइल्ड टाइप है, ये मिनिएचर है, और ये भी आपका वाइट है। तो आप देखोगे कि इसमें जो आपका आ रहा है, जैसे मैंने बेटा, वो आपके 4 तरह के आएंगे जरूर। एक वाइल्ड टाइप आएगा, एक सेकंड, एक वाइल्ड टाइप आएगा, एक मिनिएचर आएगा, एक वाइट मिनिएचर आएगा, और एक वाइट आएगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ रिकॉम्बिनेंट्स की संख्या ज्यादा होगी, यहाँ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। आई होप यू गॉट इट। एनी डाउट? सिंपल है, एक बार जल्दी से देख लो फटाफट, कोई भी डाउट हो तो फटाफट पूछ लो। आई होप इट इज क्लियर। चले जी, अब चले आगे। तो ट्यूटोनिक्स की क्लासेस में आपको ये फायदा जरूर रहता है कि आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलती है, और आप जो है वो स्मॉल बैचेस में पढ़ते हैं, तो स्मॉल बैचेस में आपको हर चीज में फायदा मिलता है। चलें जी, चलो। नाउ अगर हमें लिंकेज को डिफाइन करना हो तो हम लिंकेज को कैसे डिफाइन करें, ध्यान से देखेंगे। देखो, लिंकेज को अगर डिफाइन करना हो, इट इज द फेनोमेना ऑफ certain genes staying together during inheritance through generations without any knowledge or separation. This is due to their location on the same chromosomes. Is that clear? So linkage है क्या basically? It is a phenomena of certain genes which are inherited together or staying together during inheritance through generations without any change or separation. यानी कभी change हुए ही नहीं, कभी separate हुए ही नहीं। फेविकॉल से भी मजबूत जोड़ है जी, टूटेगा नहीं। ठीक है। So linkage was first seen by Bateson and Punnett. ठीक है, बेटसन एंड पनेट ने इसको सबसे पहली बार देखा था इन लैथिरस ओडोरेटस। ठीक है, लैथिरस ओडोरेटस व्हिच इज कॉल्ड एज द स्वीट पी, व्हिच इज कॉल्ड एज द स्वीट पी। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गेव कपलिंग एंड रिपल्शन फेनोमेना। सो कपलिंग एंड रिपल्शन फेनोमेना वाज गिवन बाय बेटसन एंड पनेट, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ लिंकेज, क्योंकि लिंकेज की जो फेनोमेना थी उसको ये दोनों भी मतलब एग्जाम्पलीफाई नहीं कर पाए थे, या उसको explain नहीं कर पाए थे। So sex linkage was first discovered by Morgan in Drosophila, and he was the one, Morgan ही वो बंदा था जिसने coin किया था term linkage. So he proposed the theory of linkage. Any doubt? I hope it is fine. Great. Now linkage and independent assortment को अगर हमें represent करना हो, देखो ध्यान से, आज आपने ये दूसरा वाला भी कर लिया है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम पहले ही कर चुके हैं। तो ध्यान से देखो, लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डायहाइब्रिड प्लांट। कैसे? देखो, इन केस ऑफ लिंकेज इन डायहाइब्रिड, जैसे सपोज ये आया, आई कहाँ है, यहाँ पे कहाँ है आई? देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका जो है आता है, इसमें आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ दोनों ही कैपिटल है इस वाले क्रोमोसोम, है ना, लेकिन इस वाले में क्या है, दोनों ही स्मॉल है। तो क्या आएगा? आई होप यू गॉट इट। तो प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, कौन-कौन से होंगे? या तो ए बी या इज दैट क्लियर? ठीक है जी, डन है। तो दो ही तरह के गैमेट्स होंगे इसमें, कैपिटल ए कैपिटल बी, यानी डोमिनेंट ए बी बोथ, या होमोजाइगस रिसेसिव ए बी। इज दैट क्लियर? तो ये तो प्लांट के केस में जो कि डायहाइब्रिड है आपका। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायहाइब्रिड है तो क्या होगा? इसमें ऐसा रहेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। इट प्रोड्यूसेस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। कौन-कौन से हैं? 4 तरह के कौन-कौन से होंगे? बस बना दो, दोनों कैपिटल में, फिर एक को स्मॉल ले लो, बी को कैपिटल कर दो, फिर एक को स्मॉल ले लो, बी को कैपिटल कर दो, और लास्ट। ठीक है, ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं? सिंपल है। एनी डाउट? So linked genes are linearly, try to understand this. Linked genes are linearly located on the same chromosome. They get separated if exchange or crossing over takes place between them. So strength of linkage जो है, that is inversely proportional to distance of the genes. यानी देखो ध्यान से, अगर A और B की डिस्टेंस बिल्कुल माइक्रोमीटर की है, तो ये दोनों चाहें तो बहुत अच्छी एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हैं। और क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करें तो क्रॉसिंग ओवर को भी स्टडी काफी किया जा सकता है। देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द क्रॉसिंग ओवर टू। सो हियर यू कैन सी द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, या स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। तो देखो, क्रॉसिंग ओवर ऑब्वियसली डिस्टर्ब्स और डीजेनरेट्स लिंकेज, सो लिंक्ड जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। तो लिंक्ड जीन्स जो है उनको भी सेपरेट हम कर सकते हैं बाय क्रॉसिंग ओवर। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं क्रॉसिंग ओवर के लिए। सबसे पहला, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा,
जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ेगा। तो नोट कर लेना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी जैसे जैसे बढ़ेगा क्रॉसिंग ओवर आपका बढ़ेगा। एक्सरे, एक्सरे के केस में भी अगर एक्सपोजर लिमिटेड है और बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है तो आपका एक्सरे के केस में भी एक्सरे जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ेगा। देन एज के केस में एज बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा। और सेक्स और मेल में मैं अगर बात करूं तो मेल की क्रॉसिंग ओवर की कैपेसिटी टोटली एब्सेंट पाई गई थी मेल ड्रोसोफिला से। मेल में जो अगर हम देखें क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर इज टोटली एब्सेंट इन मेल ड्रोसोफिला। लेकिन मेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत अगर हम बढ़ने घटने की बात करें तो यस क्रॉसिंग ओवर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेल में जरूर होगा। आई होप यू गॉट इट, एनी डाउट? अब देखो, जब एक क्रोमोसोम बियर्स वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव जीन, जस्ट one second. I think there is some technical issue with this. ध्यान से देखेंगे फटाफट, क्लियर है जी? एक सेकंड चाहिए मुझे, 2 सेकंड दीजिए। यस, अब आ जाएगा। तो सिस अरेंजमेंट तो मैंने आपको बता दिया, ये आप पढ़ते हो उसमें अगर आप ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखना, ये देखो जैसा कि मैंने, ओहो ये शुरू से शुरू हो गया, कोई बात नहीं, बी पेशेंट इनफ। देखो व्हेन टू डोमिनेंट जीन्स, ध्यान से देखना, when two dominant genes are located on one chromosome and both recessive genes are located on another chromosome, ये देखो इस तरह से है ये, अगर एक ही क्रोमोसोम पे दोनों डोमिनेंट हो, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी मान लो, और दूसरे क्रोमोसोम पे दोनों रिसेसिव हो, तो इसको कहा जाता है सिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। आपको सिस टाइप का मतलब क्या हुआ? जब दो डोमिनेंट जीन्स लोकेटेड हो वन क्रोमोसोम पे और दोनों रिसेसिव, दे आर लोकेटेड ऑन अनदर क्रोमोसोम, सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सिस अरेंजमेंट। ऐसा ही आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में जब आप ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ते हो, तो ऑप्टिकल भी नहीं, उसमें उसमें तो ऑप्टिकल में तो आपके वो आ जाते हैं मेरे ख्याल से, व्हाट यू कॉल एज दिस वन, D and L forms, that is extra rotatory and levo rotatory forms। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा कि यहाँ पे जब आप पढ़ते हो ना डबल बॉन्ड के अक्रॉस, अगर ग्रुप सेम हो तो क्या होगा, डायगोनली ऑपोजिट हो तो क्या होगा, तो उसको हम कहते हैं सिस अरेंजमेंट। सो सिस अरेंजमेंट इज एन ओरिजिनल अरेंजमेंट, और यहाँ पे हम कहते हैं टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सिस अरेंजमेंट, एक है कैपिटल ए बी और एक है स्मॉल ए बी वाला। एक ही क्रोमोसोम पे जब दोनों कैपिटल हो तो उसको कहते हैं सिस अरेंजमेंट, और दोनों जब दूसरे पे स्मॉल हो तो उसको क्या कहते हैं, सिस अरेंजमेंट। एनी डाउट? ठीक है, चले आगे। दूसरा है ट्रांस अरेंजमेंट। तो देखो व्हेन अ क्रोमोसोम बियर्स वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव जीन, देखो एक ही क्रोमोसोम में अगर देखो ऐसा हो, वो तो आपने देखा कि एक ही क्रोमोसोम पे दोनों डोमिनेंट हो और एक ही क्रोमोसोम पे दोनों रिसेसिव हो, तो हमने कहा सिस अरेंजमेंट। तो ये अगर हम ये देखें कि जब एक क्रोमोसोम में एक डोमिनेंट हो और वन रिसेसिव हो तो क्या होगा, यानी इस क्रोमोसोम में देखो एक तो डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, फिर इस क्रोमोसोम में देखो ए वाला रिसेसिव है लेकिन बी वाला डोमिनेंट है, तो उसको क्या कहोगे? तो एक ही क्रोमोसोम में अगर दोनों हो, दोनों डोमिनेंट और दोनों रिसेसिव हो दूसरे क्रोमोसोम में, तो क्या कहा हमने, सिस अरेंजमेंट। इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहते हैं ट्रांस। जैसे डायगोनली ऑपोजिट वाले को लेते हैं ना केमिस्ट्री में, तो वैसे ही ये होगा ट्रांस। सो देखो ध्यान से, when a chromosome bears one dominant and one recessive gene and another possesses one dominant and one recessive gene, such type of, ध्यान से देखना बेटा, देखो ध्यान से, ये देखो, देखो
another chromosome also possesses one dominant and one recessive gene. Such type of arrangement is called as transarrangement. क्लियर है? तो देखो ये डायगोनली ऑपोजिट हुआ ना, एक में क्या है, एक क्रोमोसोम में एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, उसी तरह पहला रिसेसिव है, दूसरा डोमिनेंट है. So such type of arrangement is called transarrangement. So transarrangement is not an original form. It is due to crossing over. ठीक है? So two types of gametes are also formed in transarrangement, but it is different from cis arrangement. और वो है क्या? एक है कैपिटल A स्मॉल b और दूसरा है स्मॉल a कैपिटल B. Is that clear? कोई डाउट तो नहीं? Done? Next topic है polygenic inheritance. When one phenotypic character is controlled by more than one gene. ध्यान से समझो, जब एक phenotypic character कई सारे जीन्स मिलकर कंट्रोल करते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. ध्यान से समझना इसको. तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि when one phenotypic character is controlled by more than one gene. poly means many और जेनिक means genes. ठीक है? तो ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. यहाँ पे बेटा ये स्पेलिंग ध्यान रखना. This is Carl Reuter. So Carl Reuter is known as father of polygenic inheritance. It is also called as quantitative inheritance. It is also called as quantitative inheritance. तो ये आपको ध्यान में रखना है. So quantity of inheritance depends on dominant alleles. Dominant alleles के quantity पे depend करती है कि inheritance कैसे जाएगा. ठीक है? So dominant alleles have cumulative effect, each expressing part of trait. Each expressing part of trait. Any doubt? ठीक है? So gene involved in quantitative inheritance is known as polygenes. So polygenic inheritance don't follow the Mendelian ratio. Polygenic inheritance जो है they don't follow the Mendelian ratio. ये आप ध्यान में रखेंगे. एग्जाम्पल क्या है? स्किन कलर ऑफ मैन, व्हीट कर्नल कलर. ठीक है? ये किसके एग्जाम्पल है? ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल है. लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कभी भी मेंडेलियन रेशियो या मेंडेलियन कैरेक्टर्स की तरह जो पूरा पैटर्न होता है वो पूरा का पूरा शायद फॉलो ना करे, लेकिन यस ये फॉलो जरूर करेगा कि अगर हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोजाइगस वाला इफेक्ट देगा. लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉलीजेनिक है इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे क्या है कि आपके जो जीन्स हैं वो मिलके एक कंबाइंड इफेक्ट दे रहे हैं. एक ही कंबाइंड इफेक्ट देने के लिए कई सारे जीन्स मिलकर इफेक्ट दे रहे हैं. इसलिए जितने भी जीन्स इन्वॉल्व हैं सभी का जब कंबाइंड इफेक्ट आएगा तो ही वो इफेक्ट आएगा, वरना इफेक्ट वेरी करेगा और उसमें ग्रेडेशंस होंगे. इसमें जो इनहेरिटेंस इसमें ऐसा नहीं कि सीधे टॉल और ड्वार्फ रहेगा. इसमें जैसे मान लो सपोज गोरा है और काला है स्किन कलर में, ह्यूमन स्किन कलर की अगर हम बात करें तो गोरा और काले में भी कई सारे वेरिएशंस हैं. वेरी लाइट, एक्सट्रीमली लाइट, स्लाइटली लाइट, उसी तरह डार्क में भी स्लाइटली डार्क, वेरी डार्क, एक्सट्रीमली डार्क, है ना, इस तरीके से. और जो बीच का कलर है वो कहलाता है मेलाटोस. तो आज हम इसी पे लेके चलेंगे आपको और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा. जैसे मान लो सपोज हम कहते हैं कि इसको हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की तरह भी ले सकते हैं बच्चों. We can take it as a tri-hybrid cross as well, and you can see that suppose there are three genes A, B, and C. There are three genes A, B, and C. These are polygenes. Okay, so these are regulating the human skin color. तो इस केस में अगर हम देखें तो यदि ये सारे के सारे डोमिनेंट हों और इसका क्रॉस, सॉरी एक सेकंड बेटा, इसको अगर हम इसको अगर हम A, B, B, C, C यानी तीन जीन्स है ना, इसको हमने क्रॉस कर दिया स्मॉल A, स्मॉल B और स्मॉल C. ठीक है? तो ये पेरेंटल टाइप है. तो अब देखो गैमीट्स में क्या आएगा. गैमीट्स में क्या आएगा? ये आएगा A, B, C और यहाँ क्या आएगा? सिंपल है A, B और C आएगा. और यहाँ क्या आएगा? ये स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C. यहाँ क्या आएगा? स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C आएगा. ठीक है? अब हम चलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन पे. तो देखो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में क्या आएगा? F1 जनरेशन की अगर हम बात करें इसमें सारे कॉम्बिनेशन एक जैसे आएंगे. कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे. बस आएगा. हाँ यार खुद देखो और खुद बताओ. आएगा? और ये रहा A, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c. समझ में आया? तो ये चारों कैसे होंगे? ये जो कलर होता है देखो बेटा, ये जो था इनको कहते हैं हम नीग्रो की तरह, बिल्कुल ब्लैक. नीग्रो जानते हो? जैसे बिल्कुल ब्लैक होते हैं. कुछ अफ्रीकन होते हैं, जैसे कुछ अफ्रीकन पॉपुलेशंस में भी हैं. और कुछ अगर हम वेस्ट इंडीज के जो क्रिकेटर्स हैं जिनको आपने देखा होगा कि जब हंसते हैं
हेलमेट के अंदर से तो सिर्फ दांत नजर आते हैं, तो वैसे बिल्कुल अगर हो तो उसको कहते हैं नीग्रो, है ना। नीग्रो और भी है, और भी कई कंट्रीज में मिलते हैं, लेकिन ये कलर जो है ये कहलाता है कॉकेशियन। तो जब एक नीग्रो की शादी किसी कॉकेशियन से हो जाती है, ठीक है ना, जब एक नीग्रो की शादी किसी कॉकेशियन से हो जाती है तो क्या होता है, जरा ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, जो कलर आएगा अगले जनरेशन में वो बीच का कलर आता है, ठीक है, कॉकेशियन, ठीक है, तो बीच का कलर आता है। और इसमें ओवरऑल जो आएगा, तो इस ये जो कलर यहाँ पे आएगा इसको हम कहते हैं मुलाटो, ठीक है, मुलाटो। तो ये जो कहलाते हैं दीज आर कॉल्ड एज मुलाटोस। सो मुलाटोस आर दोस व्हिच आर हैविंग द इंटरमीडिएट कलर, ठीक है। इसमें कलर कैसा आएगा, ये मेंडेलियन पैटर्न की तरह ये नहीं होगा कि ये नीग्रो वाला कलर आएगा, क्योंकि अगर ये मेंडेलियन पैटर्न फॉलो करता ना तो ये नीग्रो वाला कलर ही तो आता, क्योंकि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में भी मेंडेलियन पैटर्न में आपने क्या देखा, डायहाइब्रिड क्रॉस में आज ही हमने देखा कि डायहाइब्रिड क्रॉस में भी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर अगर हो, या कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो, तो क्या होगा, राउंड येलो या येलो राउंड, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये अगर इस तरह का होता तो ऐसा ही आना चाहिए था, लेकिन मेंडेलियन पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ कैसा कर रहा है कि भाई अगर दोनों, अगर सपोज ए के दोनों एलील डोमिनेंट नहीं, बी के भी दोनों एलील डोमिनेंट नहीं, सी के भी दोनों एलील डोमिनेंट नहीं, तो एक्सप्रेशन इंटरमीडिएट आ रहा है। दिस इज हाउ यू ऑब्जर्व द कलर इन मुलाटोस। मुलाटोस जो है इनमें इंटरमीडिएट कलर होता है, और फिर जब इसकी सेल्फिंग की जाएगी ना तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है। सो व्हेन इट इज सेल्फ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है, और वो मैं चाहूंगा कि आप करें घर पे, और मुझे आप अगली बार बताएंगे कि F2 जनरेशन में, जो F2 जनरेशन है, सेकंड फिनल जनरेशन, उस F2 जनरेशन में फाइनली phenotypic ratio क्या आता है। This is your homework. What is the phenotypic ratio? What is the phenotypic ratio in the F2 generation? In the F2 generation, what is that? Is that clear? ठीक है, ये आप कैलकुलेट करेंगे। मैं चाहूंगा कि ये क्रॉस आप घर पे करें, और इस क्रॉस को करने के बाद आपको और ज्यादा पता चलेंगी चीजें कि कैसे होती हैं। और ये जो रेशियो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो गैमीट्स हैं कितने बनेंगे पहले तो आपको वो देखना पड़ेगा। एक तरफ वही आप पनेट स्क्वायर बनाओगे, और पनेट स्क्वायर बना के व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल कीप सम गैमीट्स ऑन द मेल साइड, मेल वाले में एक रखोगे कुछ गैमेट्स, और सेम सिमिलर गैमेट्स आपके फीमेल वाले में भी बनेंगे। तो आपको देखना पहले ये पड़ेगा कि कितने गैमेट्स बनेंगे। हिंट के लिए मैं बता देता हूँ, 8 गैमेट्स बनेंगे। देयर विल बी 8 गैमेट्स, मेल में भी 8 गैमेट्स, फीमेल में भी 8 गैमेट्स। तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हो जाते हैं कितने, 64। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विल बी 64। तो वही लेके चलना है आपने, और ये आपका होमवर्क है। बाकी मैं चाहूंगा कि आप रिवाइज करें इसको। आज आपने देखा बच्चों कि आज आपने काफी हमने चीजें करी। हमने डायहाइब्रिड क्रॉस करा, हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस करा जो कि सटन एंड बोगरी ने दिया था। हमने और भी कई सारी चीजें करी, अगर आपको ध्यान हो। वी आल्सो डिड व्हाट यू कॉल एज linkage, the phenomena of linkage, and then we studied what was proved by T.H. Morgan. T.H. Morgan is also called as the father of experimental genetics. He did his experiments along with his research scholars on Drosophila melanogaster. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। इसका जनरेशन टाइम बहुत कम होता है। ये भी एक रीजन था इस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करने का इसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और लिंकेज के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये भी प्रूव हुआ कि लिंकेज दो तरह का हो सकता है, एक कंप्लीट लिंकेज और एक इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज के केस में recombination is very low, or incomplete linkage के केस में the recombination is high, but in any case recombination cannot be higher than 50%. The recombination frequency cannot be higher than 50%. So this is the thing. और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से और क्या क्या चीजें हैं, और उसमें हमने देखा क्रॉसिंग ओवर क्या क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कब बढ़ेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। देन वी सॉ सिस अरेंजमेंट क्या होता है, ट्रांस अरेंजमेंट क्या होता है, देन we have started studying polygenic inheritance। इसमें हमने देखा कि कई सारे जीन्स मिलके एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी ला सकते हैं, और एक कंबाइंड मिलके यानी कॉम्बिनेशन में चल के they can give rise to a particular phenotype। यानी सिर्फ एक phenotype को रेगुलेट करने के लिए कई बार एक से ज्यादा जीन्स भी होते हैं, और इसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। और इन जीन्स को कहा जाता है पॉलीजीन्स। जैसे कि लिंकेज के केस में जो फेनोमेना है दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज, एंड द जीन्स व्हिच आर लिंक्ड आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। तो ये सारी चीजें, और हमने देखा कि किस तरह से ये तीन जीन्स का कॉम्बिनेशन ए बी सी का कॉम्बिनेशन किस तरह से, अगर नीग्रो की मैरिज एक कॉकेशियन से हो जाए तो किस तरह से मुलाटोज बनते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से मुलाटोज की जब सेल्फिंग होती है तो क्या आता है F2 जनरेशन में, क्या रेशियो आता है जब मुलाटोज की सेल्फिंग होती है, कैसे इंटरमीडिएट वेरिएशंस आते हैं,
ठीक है, तो वो सारा मैं चाहूंगा कि आप घर पे करके लाएं और घर पे करें और अगली क्लास में I would like to see that. With that, we will start the next class. और हाँ, एक और चीज, जेनेटिक्स में अभी तक मैंने आपको MCQs नहीं कराए हैं कभी भी. This is the third class. So in the next class, I would like to bring some MCQs as well. So I will move ahead with the MCQs in the next class. After that, we'll move with the theory part in the class after that. ठीक है जी? तो फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा और जो भी चीज आपको लगे दोबारा आप इसको प्ले करके, इस वीडियो को प्ले करके सारी चीजें देख लीजिएगा एंड बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ट्यूट्रॉनिक्स, दिस इज अ रिवोल्यूशन और ट्यूट्रॉनिक्स के साथ आप जरूर जुड़ें और हम आगे बढ़ते चलेंगे नीट के सफर. थैंक यू.